In this video, I'm going to share you why you should enjoy your failures and why you should be grateful for your failures. Because whatever I am today, it's all because of my failures, struggle, and challenges that I have gone through in my life. Hi, my name is Amol Kalare. I'm the author of the best selling book, The Magic of Failure, and founder of MRM, which is known as Morning Ritual Miracle. Last week, when I was conducting one masterclass, there was one person who asked me, Amol, you have failed so many times in your life. You failed in your three startup, you took a personal loan, you're in huge debt. Then how did you start it? How did you found that courage to start your fourth venture? So I thought, let me make one video on why you should love your failures and how your failures can help you to change your life. So before I begin, it's my humble request to each and everyone. First of all, please understand our life is like an ECG. Ups and downs both are important. You should enjoy both success as well as failures. Because please understand, the more you fail, the more you learn. The more you learn, the more you will grow. And the reason God and universe gives us failures and challenges because He wants to make us a strong person. He wants that you should change your life so that you can become the best version of yourself and you can inspire other people and you can change other people's lives. So please enjoy your failures and try to understand that we all are human beings. It's okay to fail, it's okay to go through challenges, it's okay to go through misery. Don't try to become God. We are not the creators. Be a human, and it's okay if you are not perfect. It's okay if you're imperfect. Because I'm a firm believer, I'm imperfect, and that's perfectly perfect. And I keep repeating this statement every day. Because if you wait that when I become perfect, then I will start my journey, then I will start my business, it will not happen. Whatever mistakes I've made, it's all because of my failures. And I learn from my mistake and I learn from my failures and I don't repeat that mistake again. Okay? So now let me share you what are the failures that I have went through in my life and what lessons that failure has taught me. तो आज मैं आपसे जो बात करूँगा, मैं अपने फेलियर्स के बारे में बात करूँगा नाउ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शायद मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ आपके फेलियर से, शायद आपने मेरे से ज़्यादा फेलियर देखे होंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक 2018 में रियलाइजेशन मिला एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो इफ़ यू सी माई जर्नी वॉज नॉट ईजी. आई एम गोइंग थ्रू चैलेंज एंड फेलियर्स सिंस माई चाइल्डहुड डेज. आई वॉज रियली अ गुड स्टूडेंट टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड, बट कुछ इंसिडेंट मेरे लाइफ में ऐसे हुए जिससे मैं अपना पूरा सेल्फ इमेज मेरा वीक हो गया. मैं न एक डर लगने लगा कि लोग क्या बोलेंगे, आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हूँ. तो मतलब एक काफ़ी सारे मुझे डर डेवलप हुआ जब मैं जो जो मेरे दो इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुए. जो फर्स्ट इंसिडेंट था जब मेरी सिस्टर आरती एक्सपायर हुई, तब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था. मेरे मॉम डैड ने काफ़ी कोशिश की उनको सेव करने की. वो कैंसर से सफ़र कर रही थी, बट हम उनको नहीं सेव कर पाए. और सेकेंड इंसिडेंट था जब मेरे को बहुत बड़ा चश्मा लगा था. बहुत बहुत मैं लंबे का ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहा था और स्पेक्स काफ़ी हैवी थे. तो फिफ्थ में मुझे स्पेक्स लगे और जब भी मैं स्कूल में जाता था तो मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरे को चिढ़ाते थे, डबल बैटरी, चश्मिश पावर, और मुझे काफ़ी सारा काफ़ी मुझे एक निकनेम रखा गया स्कूल के टाइम पे. और उसकी वजह से मेरा सेल्फ इमेज वीक हो गया और मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था. तो सडनली मेरे मार्क्स कम होते गए. मुझे आंसर्स याद नहीं होते थे बिकॉज मैं हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा ओवर थिंक करता था कि अब क्या होगा मेरे लाइफ में. और ये मेरे लाइफ का स्ट्रगल फिर स्टार्ट हुआ था. और मुझे अभी भी याद है नाइन्थ में जब टीचर, जो मेरा रोल नंबर मुझे अभी भी याद है, मेरा 1313 रोल नंबर था. तो क्या होता था हमारे क्लास में कि टीचर्स पेपर लेके आते थे, आंसर शीट जो हम एग्ज़ाम देते थे, और टीचर्स रोल नंबर बोल के मार्क्स बताते थे. तो मुझे अभी भी याद है मेरी ज्योमेट्री की टीचर, अलजेब्रा की टीचर, जब ज्योमेट्री टीचर आई तो उन्होंने मेरा रोल नंबर पुकारा. उन्होंने बोला कि रोल नंबर 13, 7 मार्क्स. फिर ज्योमेट्री में भी वही था, रोल नंबर 13, 9 मार्क्स. तो सब स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे दिखते थे कि जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया है. कोई कोई स्टूडेंट्स हंसते थे. कोई मुझे एक दो फ्रेंड ने ऐसे भी बोला कि अमोल तुम क्या यार 10 मार्क के ऊपर भी नहीं ला सकते.
तो काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था स्कूल के टाइम पे, और उसकी वजह से मेरा सेल्फ इमेज काफ़ी वीक हो गया। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मैं 9th में प्रमोट हुआ। 10th में मुझे कम परसेंटाइल मिले 54, 11th में केटी लगी, 12th में आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। द रीज़न आई फेल्ड बिकॉज मैं पेपर पे ही नहीं गया। 29 परसेंटाइल मुझे मार्क आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मैं इसलिए पेपर नहीं गया, एक या दो पेपर में गया। फिर मैंने मेरे मम्मी डैडी को बोला कि मुझे नहीं जाना है पेपर, बिकॉज मैं आंसर सब भूल रहा हूँ और मुझे मन नहीं लग रहा। तो मुझे डैड ने बोला कि ठीक है, बट आपको 12th नेक्स्ट अटैम्प्ट देना पड़ेगा, आपको सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप 12th नहीं क्लियर करोगे तो लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो समाओ मैंने 12th क्लियर किया। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा कि 12th जो मैंने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया वो मैंने कॉपी किया था। मैं चीट बना के लेके जा रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे आंसर्स मुझे याद नहीं हो रहे थे, और मैं बहुत प्रेशर में था, बहुत डर रहा था। समहाउ आई डोंट नो कि मुझे नहीं पकड़ा गया, बट मैं कॉपी करके पास हुआ 12th स्टैंडर्ड, और मुझे 50 परसेंटाइल मिले। फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गया तभी मुझे केटी लगी। समहाउ मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर किया। तो दो तीन केटी थी, उसको नो किसी भी हालत में एक पासिंग मार्क्स मिल गए, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड को। और फिर मैं ग्रेजुएशन में मेरा चालू हुआ, बट ग्रेजुएशन में भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। वही रीज़न, मुझे आंसर्स याद नहीं हो रहे थे, मैंने नहीं दिया पेपर बिकॉज बहुत प्रेशर था। मुझे लगता था कि यार 12th ग्रेजुएशन में पास होना ही है, और हमेशा हर पेपर प्रेशर में लिखता था, फियर में लिखता था। फिर से वही हुआ, ग्रेजुएशन में फेल हुआ। फिर से मेरे डैड मॉम ने वही बोला कि अमोल आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, काफ़ी लाइफ में डिफ़िकल्टी आएगी। अगेन मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड अटेम्प्ट में पास किया, और उसमें भी मैंने कॉपी किया। तो लकीली अगेन नहीं पकड़ा गया, और मुझे सिर्फ 50 परसेंटाइल मिले। तो ये मेरी एजुकेशन की जर्नी थी। अब इमेजिन कीजिए आपके पास इतने फेलियर्स के मार्कशीट है, 12th में फेल, ग्रेजुएशन में फेल, इंग्लिश नहीं बोलना आता था, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक था, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, डर डर के इंटरव्यू दे रहा था। तो क्या हुआ, बैक टू बैक मुझे 7 कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट किया गया। और मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, बिकॉज वो मेरा मैं फाइल लेके जाता था, वो मार्कशीट दिखते थे, अमूल आप 12th में फेल हो, आप ग्रेजुएशन में फेल हो, आपका इंग्लिश भी पुअर है, तो आप नहीं कर पाओगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम। और बैक टू बैक मैं 7 इंटरव्यूज़ में फेल हो गया। मैं घर पे आया, मैं डैडी को बोला आई थिंक जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मेरे डैडी ने कुछ मुझे पैसे दिए, मैंने मेरा फर्स्ट बिज़नेस स्टार्ट किया मोबाइल शॉपिंग का, उसमें भी फेल हो गया। सेकंड बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया कुर्ती सेल करने, उसमें भी फेल हो गया। थर्ड बिज़नेस मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया वीसो एजुकेशन करके, जहाँ पे मैं डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम प्रमोट करता था, सिक्किम मणिपाल वेलिंगकर, उसमें भी फेल हो गया। तो एजुकेशन में फेलियर, बिजनेस में फेलियर, और थर्ड बिजनेस में मैंने पर्सनल लोन लिया था अराउंड 2.5-3 लाख का। तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं चल रहा था, तो मैं अपने ईएमआईज भी पे नहीं कर पा रहा था। हर दिन मुझे क्रेडिट कार्ड ईएमआई बैंक वाले फ़ोन करने थे, करके मुझे तकलीफ़ हुई तभी, बिकॉज नहीं हो रहा था मेरे से पे करना। तो फिर उसके बाद लकीली मुझे जॉब मिल गया, फिर से मैंने मेरी जॉब जर्नी स्टार्ट की, बट जॉब में भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास है टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस, और मैंने आज तक कम से कम 14 जॉब चेंज की है 12 साल के एक्सपीरियंस में, बिकॉज मैं मेहनत करता था पर मुझे सक्सेस नहीं मिलता था, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, सिर्फ सेल्स का जॉब था। मैं सेल मुझे लगा कि अब कौन मुझे ऑपरेशंस फाइनेंस में लेगा, मुझे लगा नहीं यार कुछ नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं उनके लिए सेल्स होता है। तो मैं सेल जॉब पे करता था, मेहनत करता था, बट क्लोजिंग नहीं होता था, टारगेट नहीं अचीव कर पाता था, प्रेशर में आ जाता था। और मैं हर जॉब मैंने प्रेशर में छोड़ा है, हर जॉब मैंने एक स्ट्रगल में छोड़ा कि यार मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, घर वाले क्या बोलेंगे। तो तकरीबन मैंने 14 कंपनी में मैंने ऐसे अलग अलग जॉब किए थे, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। एंड्रोमेडा से मैंने स्टार्ट किया, डीएनए, सदरलैंड, वोडाफोन, फ्यूचर एजुकेशन लिमिटेड, द चोपरास, वोकार्ड, सनफी एवेंटिस, स्पेक्ट्रम क्लिनिकल रिसर्च, आईसीएफआई बिजनेस स्कूल, फैब्स, ब्लैंचार्ड, मॉन्स्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया। इतने सारे मुझे लिखना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा कि मैंने कितने सारे जॉब चेंजेस किए। तो किसी किसी जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर 2018 में सोचा मैंने, यार क्या लाइफ में प्रॉब्लम है यार, इतने सारे फेलियर्स, इतने सारे स्ट्रगल। और हमेशा मेरी मम्मी टेंशन में रहती थी कि मेरे बेटे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। हमेशा मेरी मम्मी ज्योतिषी के पास जाती थी, डेट ऑफ बर्थ बताती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे मम्मी डैडी बहुत परेशान होते थे मेरे को लेके, बिकॉज मेरे को कहीं जगह पे सक्सेस नहीं मिल रहा था। मैं हमेशा घर पे लाइक टेंशन में होता था। मेरे मेरे मैंने लिटरली मैं स्माइल करना भूल गया था। तो मेरी मम्मी काफ़ी टेंशन में थी, तो एक दिन मम्मी रो रही थी मेरे लिए, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने 2018 में सोचा नहीं, अब मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, मुझे कुछ भी हो मुझे सक्सेस पाना ही है।
2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपना पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने बुक्स पढ़ने स्टार्ट किया, और जो भी आज मैं हूँ मेरे मेंटर्स की वजह से हूँ। मेरे मेंटर ने मेरे पे बिलीव किया और मैंने अपने आप को चेंज किया। इमेजिन गाइस, अगर मैं ये फेलियर मुझे लाइफ में नहीं मिलती थी तो शायद मुझे रियलाइजेशन नहीं होता था। और अब इतना, अब ये फेलियर्स में इतने मेरी स्टोरी शेयर, मैं आपको एक फ्रैंकली बताऊं कि मैंने ये स्टोरी किसी से शेयर नहीं की थी। फर्स्ट टाइम मैंने 2018 में लोगों को बताया कि मैं 12th और ग्रेजुएशन में फेल हूँ। यहाँ की जब मैं चौल में रहता था उनको भी पता नहीं था कि अमोल 12th और ग्रेजुएशन में फेल हुआ है, बिकॉज चौल में आप नहीं बता सकते। मुझे इतना भी याद है कि मैंने झूठ मूठ की मिठाई बांटी थी 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज लोग पूछते थे अमोल तुम पास हुए मिठाई दो। तो मुझे पता है कि वो क्या, मतलब कैसा मोमेंट था वो। और मम्मी डैडी, डैडी भी मेरे टेलर थे, दुकान में थे, तो पूछने के डैडी के दोस्त लोग आपका बच्चा पास हुआ क्या, तो डैड क्या बोलेंगे, तो डैड बोलते थे हाँ पास हो गया। मतलब इतना वो स्ट्रगल होता था बिलीफ सिस्टम की वजह से, मतलब लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से कितने सारी चीज़ें मैंने लाइफ में छुपाई। बट यही है कि जब मैंने 2018 में ऑनेस्टली लोगों को बोला, मैंने खुद लाइफ चेंज की। इमेजिन करो, मेरे फेलियर की स्टोरीज की वजह से आज तक मैंने 10,000 प्लस लोगों को इंस्पायर किया है। उनको मैंने मॉर्निंग रिचुअल सिखाया है कि मैंने उनको बोला है कि आपके फेलियर को एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में फेल हो बट गिव अप मत करो। तो प्रॉब्लम है इन्होंने, हम लाइफ में जल्दी गिव अप करते हैं, और मैंने यही सीखा है कि जो भी आपके फेलियर से, उससे ही आप ग्रो करोगे। और एक मैं आपको एक कोट है जो विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, मैं हमेशा ये कोट को फॉलो करता हूँ। करेज के ऊपर एक कोट है, आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। करेज इज द एबिलिटी, करेज इज द एबिलिटी टू गो ग्रो, sorry, to go, okay, I will repeat again. Courage is the ability to go from failure to failure without losing enthusiasm. So you want to courageously hold on to your dream and not lose the enthusiasm, because please understand, giving up is the greatest failure in life. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर मैं एक लड़का जो 12th में फेल हुआ है, जो ग्रेजुएशन में फेल हुआ, ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, जिनको जिनको बैक टू बैक 3 बिजनेस में फेल हुए, जिनको बैक टू बैक 14 कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में रिजेक्शन मिला, जो जॉब इंजॉय नहीं करते थे, अगर मैं ये मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं मेरे फाइनेंशियल के बारे में इतना नहीं बात करता हूँ, बट ट्रस्ट मी, आज विदिन 2018 से लेके लाइक ये अभी 2022, विदिन 2-2.5 साल में मैंने कम से कम 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। बट ये इसलिए 2 करोड़ कमाए हैं बिकॉज मैं लोगों की हेल्प करने लगा। और मैं 3 बिजनेस में इसलिए फेल हो गया बिकॉज मैं तीनों बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए स्टार्ट किया था। ये बिजनेस मैंने लोगों की हेल्प, लोगों की सेवा करने के लिए, मॉर्निंग रिचुअल्स, जब ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करने की लोगों के मुझे ब्लेसिंग्स मिलते गए, और ऑब्वियसली मेरा फाइनेंशियल also went to the next level. सो जितना आप लोगों को हेल्प करोगे, जितना आप ऑथेंटिक हो, ऑनेस्ट हो, उतना आप पैसे कमाओगे लाइफ में। बट आपको हमेशा आपके फेलियर को एंजॉय करना है। अगर मैं कर सकता हूँ, एक साधारण इंसान जो चौल में रहता था, जिसके डैडी टेलर थे, अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तो आप भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप पे काम करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों से जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लाइफ में लगता है कि गिव अप करते हैं, उनके फेलियर से डर लगता है। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने आपको एक्सपीरियंस क्या वो जर्नी, और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।